کیا واقعی ایک عورت کا حسن ایک عبادت گزار کو برباد کر سکتا ہے، یا پھر اصل مسئلہ کچھ اور تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی چونکا دینے والی حقیقت معلوم ہوگی کہ برسیسا ایک راہب سے کافر کیسے بنا۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ تفسیر مظہری میں یوں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت مشہور اور عبادت گزار شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ اس زمانے میں عبادت کے میدان میں اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا جہاں وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ نہ وہ کسی سے ملتا، نہ کسی کے در پر جاتا۔ اسے دنیا سے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ پورے 40 سال تک وہ اپنے گرجے میں قید رہا۔ عبادت ہی اس کی دنیا تھی اور اللہ کی بندگی ہی اس کی زندگی۔ شیطان نے بارہا کوشش کی، مگر برسیسا کی عبادت اور اخلاص کی دیوار اتنی بلند تھی کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہ سکا۔ لیکن پھر ایک دن شیطان نے ایک نیا پلان بنایا، ایک ایسا فریب جو 40 سالہ عبادت کو مٹی میں ملا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ برسیسا اپنے کمرے سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایسا عبادت گزار کہ وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا اس کے نزدیک گناہ کے مترادف تھا۔ دن رات کا ہر پل بس عبادت، ریاضت اور ذکر الہی میں گزرتا۔ مگر جسم ہے، تھک تو جاتا ہے۔ تو جب برسیسا دن کے وقت کچھ آرام کے لیے بیٹھتا تو کبھی کبھار بس یوں ہی تازہ ہوا لینے کے لیے اپنی کھڑکی سے باہر جھانک لیتا۔ اس کا عبادت خانہ ایک سنسان جگہ پر تھا۔ ارد گرد کوئی آبادی، نہ کوئی ہنگامہ، بس خاموشی، کھیت، باغ اور تنہائی۔ اور یہی تنہائی شیطان کے لیے ایک موقع بن گئی۔ شیطان نے برسیسا کی عادت کو غور سے دیکھا کہ یہ راہب دن میں 1 یا 2 بار کھڑکی سے ضرور جھانکتا ہے۔ تو اب اس ملعون نے ایک نیا روپ اپنایا، انسانی شکل میں آیا اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ناظرین، اس مردود نے نماز کیا پڑھنی تھی، بس ایک اداکاری تھی، مگر ایسی کہ برسیسا جیسے زاہد کو بھی متاثر کر دیا۔ یاد رکھیں، شیطان کسی گناہ کی دعوت اس کے ذوق سے ہٹ کر نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ سامنے والا کس راستے سے آئے گا، تو جس کی جو کمزوری ہو شیطان اس راستے سے اس کے دل میں سرایت کرتا ہے۔ اور یہاں شیطان نے برسیسا کے دل کے دروازے پر عبادت کی دستک دی۔ چنانچہ ایک دن حسب معمول جب برسیسا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس نے دیکھا ایک شخص قیام کی حالت میں کھڑا ہے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ برسیسا حیران رہ گیا۔ پھر جب دوسرے دن دوبارہ اس نے دیکھا، وہی شخص اب رکوع کی حالت میں تھا، اور کیا ہی طویل رکوع تھا، جیسے فرشتے عبادت کر رہے ہوں۔ اور جب تیسری بار نگاہ پڑی تو وہ شخص سجدے میں تھا، ایسا سجدہ جو زمین کو بھی جھکا دے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ ہر روز، ہر بار وہی شخص عبادت میں مشغول، قیام، رکوع، سجدہ، جیسے سانس لینے کی طرح عبادت اس کا فطری عمل ہو۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا، یہ تو کوئی بڑا ولی ہے جو تنہائی میں اس قدر عبادت کرتا ہے۔ یہی خیال اس کے دل میں جڑ پکڑنے لگا، اور شیطان جو ہر لمحہ موقع کی طاق میں تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اب وہ مسلح بھی آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب لانے لگا، اور جب برسیسا نے دیکھا کہ وہ شخص اب بالکل کھڑکی کے نیچے نماز میں مصروف ہے تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے جھانکا اور پوچھا، اے بندہ خدا، تم کون ہو؟ اور ناظرین، یہ سوال ایک سوال نہیں تھا، بلکہ شیطان کے جال میں پڑنے کا پہلا قدم تھا۔ مگر اس شخص نے جواب دیا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں، مجھے تنگ نہ کریں۔ برسیسا تھوڑا چونکا، یہ کیسا بندہ ہے؟ نہ سلام، نہ بات، نہ کوئی تعارف، بس عبادت اور صرف عبادت۔ اگلے دن پھر پوچھا، اے اللہ کے بندے، اپنا تعارف تو کراؤ، تم کون ہو؟ لیکن جواب وہی، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ابھی دل میں یہ سوالات چل ہی رہے تھے کہ ایک دن بارش ہونے لگی، تیز بارش اور ٹھنڈی ہوائیں، مگر وہ شخص اب بھی عبادت کی حالت میں کھڑا تھا۔ نہ بارش کی پرواہ، نہ موسم کا خیال، بس قیام کی حالت میں بالکل بے نیاز۔ برسیسا کا دل بھر آیا، سوچا یہ تو واقعی کوئی اللہ کا ولی ہے، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ چنانچہ دل میں نرمی آئی اور اس نے آواز دی، اے عبادت گزار، بارش ہو رہی ہے، اندر آ جاؤ، میرے کمرے میں یہاں سکون سے عبادت کر لو۔ وہ شخص یعنی شیطان
बज़ाहिर इनकसारी से बोला, ठीक है, मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, मैं आ जाता हूँ। और नाजरीन वो यही चाहता था। वो अंदर आ गया और जैसे ही दाखिल हुआ इबादत की नीयत बांध ली। फिर कई महीने गुजर गए। वो मुसलसल बरसीसा के साथ उसके कमरे में नमाज पढ़ता रहा, लेकिन असल में वो नमाज की शक्ल बना रहा था। इधर क़याम, उधर रुकू, कभी सजदा, मगर न दिल था न खुशू, सिर्फ फरेब। और बरसीसा वो तो उसे वाकई बुजुर्ग समझने लगा था। दिन ब दिन उसके दिल में उसकी अकीदत बढ़ती गई, यहाँ तक कि कई महीने बाद एक दिन वो इबादत गुजार शख्स यानी शैतान बरसीसा से बोला, अब मेरा 1 साल मुकम्मल हो चुका है, मुझे यहाँ से रुखसत होना है, मेरा असल मकाम कहीं और है। लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा कहने वाला था जो बरसीसा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। नाजरीन, जाने से पहले वो इबादत गुजार यानी शैतान बरसीसा से मुखातिब हुआ, मैं जाते जाते तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, ऐसा तोहफा जो मुझे मेरे बड़ों से मिला था। अगर तुम्हारे पास कोई बीमार आए तो ये मखसूस कलिमात पढ़कर उस पर दम कर देना, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएगा। याद रखना, तुम भी कहोगे कि कोई आया था और खजाना दे गया। बरसीसा ने हैरत से कहा, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मगर वो हंसा और बोला, हमने ये नेमत तवील रियाजत और मुजाहिदे से हासिल की है और तुम जैसे को मुफ्त दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो, क्या नालायक इंसान हो तुम। बरसीसा को थोड़ी शर्म महसूस हुई, दिल में बात बैठ गई। सोचने लगा, शायद मैं वाकई नालायक हूँ। आखिरकार बोला, अच्छा सिखा ही दो। शैतान ने फौरन उसे वो दम सिखा दिया और जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा, अच्छा फिर कभी दोबारा मिलेंगे। नाजरीन, कहानी अब खतरनाक मोड़ पर थी। शैतान वहां से बादशाह के महल की तरफ गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। वो बेटी निहायत हसीन, तालीम याफ्ता और सलीकामंद। मगर अब शैतान ने अपना अगला वार किया। उस लड़की पर असर डाला। वो ऐसी हो गई जैसे दीवानी हो, मजनूना हो। अचानक उस पर अजीब दौरे पड़ने लगे, चीखें, खारिश, कपकपी। बाप बादशाह परेशान। फौरन मुल्क भर के हकीम और तबीब बुलाए गए। कई दिनों तक वो उसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद कोई आफाका न हुआ तो शैतान ने बादशाह के दिल में यह बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा लिया है, अब किसी दम वाले से दम ही करवा के देख लो। ख्याल आते ही उसने सोचा, हाँ, किसी दम वाले को तलाश करना चाहिए। चुनाचा उसने अपने सरकारी हरकारे भेजे ताकि वो पता करके आए कि इस वक्त सबसे ज्यादा नेक बंदा कौन है। सब ने कहा, इस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी तो बरसीसा है और वो तो किसी से मिलता ही नहीं। बादशाह ने कहा, अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उनके पास जाकर मेरी तरफ से दरखास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। उसने उन्हें देखकर कहा, आप मुझे तंग क्यों करने आए हैं, मेरी इबादत में क्यों खलल डाल रहे हो। उन्होंने कहा, बादशाह की बेटी बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ ना आए ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास बच्ची को लेकर आ जाते हैं, आप यहीं इस बच्ची को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में ख्याल आया, हाँ, मैंने एक दम तो सीखा है, उस दम को आजमाने का ये अच्छा मौका है। चलो, ये तो पता चल जाएगा कि दम ठीक भी है या नहीं। चुनाचा उसने उन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसीसा के पास आ गया और उसने जैसे ही वो दम किया वो फौरन ठीक हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी इसके दम से ठीक हुई है। 1-1.5 माह बाद उसने फिर इसी तरह बच्ची पर हमला किया और वो फिर उसे बरसीसा के पास ले आए। उसने दम किया तो वो फिर उसे छोड़कर चला गया। हत्ता के 4 दिन बाद बादशाह को यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज इसके दम में है। अब बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई कि उसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती है। कुछ अरसे के बाद उस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया, अगर जंग में जाए तो बेटी किसके पास छोड़कर जाए। किसी ने मशवरा दिया कि वजीर के पास छोड़ जाए और किसी ने कोई और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा, अगर इसको वो दोबारा बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा। बरसीसा तो किसी की बात भी नहीं सुनेगा।
चुनाचा बादशाह ने कहा, मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी छोड़ जाता हूँ। नाजरीन देखें शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है। बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंच गया और कहने लगा, हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का पता नहीं। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा एतमाद तुम पर है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे ही पास है लिहाजा मैं चाहता हूं कि यह बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। बरसीसा कहने लगा, तौबा तौबा, ये काम मैं कैसे कर सकता हूं कि ये अकेली मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस आप इजाज़त दें, मैं इसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूं और ये इसी घर में ठहरी रहेगी। बरसीसा ने यह सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाज़त दे दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के आगे एक घर बनवा दिया और बच्ची को वहां छोड़कर जंग पर रवाना हो गए। अब बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना ही मैं बना दिया करूँ तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो तो अकेली है, पता नहीं अपने लिए खाना पका पाएगी या नहीं। चुनाचा वो खाना बनाता और आधा खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे से बाहर रख देता और अपना दरवाज़ा खटखटा देता। ये उस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठाकर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो वो अकेली रहती है, तुम खाना पकाकर उसके दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की को वो उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है। अगर किसी मर्द ने देख लिया तो वो उसकी इज्जत खराब कर देगा, इसलिए बेहतर है खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि उसको बाहर ना निकलना पड़े। चुनाचा बरसीसा ने खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रख कर कुंडी खटखटा देता और वो खाना उठा लेती। ये सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे होते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से ज्यादा बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है कि इसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और इसका वक्त ज़ाया ना हो। एक ख्याल दिल में आते ही उसने कहा कि हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस काम की क्या तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने इस बात का जवाब भी उसके दिल में डाला कि उसको कह दो कि अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उसे वाज़ो नसीहत किया करो। चुनाचा उसने इसी तरतीब से वाज़ो नसीहत करना शुरू कर दी। उसके वाज का असर उस लड़की के दिल पर बहुत हुआ। उसने नमाजें और वजीफे शुरू कर दिए। अब शैतान ने उसके दिल में ये बात डाल दी कि देख तेरी नसीहत का इस पर कितना असर हुआ, ऐसी नसीहत तो रोज़ होनी चाहिए। चुनाचा उसने रोज़ाना नसीहत करना शुरू कर दी। इसी तरह करते करते जब वक्त गुजर गया तो शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठे हो और वो अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में गुजरने वाले क्या सोचेंगे कि ये बातें किससे कर रहे हैं, इस तरह तो बहुत गलत तासुर पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज़ से बात करने की बजाय तुम दरवाजे से बाहर खड़े होकर तकरीर करो और वो दरवाजे के अंदर खड़ी होकर सुन ले, पर्दा तो होगा ही सही। चुनाचा अब इसी तरतीब से वाज़ो नसीहत शुरू हो गई। कुछ अरसे तक इसी तरह मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने बरसीसा के दिल में ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े रहकर तकरीर करते हो, देखने वाले क्या कहेंगे कि पागलों की तरह ऐसे बातें कर रहा है, इसलिए अगर तकरीर करनी है तो चलो कबाड़ के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, वो दूर खड़ी होकर सुन लिया करेगी। चुनाचा अब उसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। जब इसने अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी तो लड़की ने उसे बताया कि इतनी नमाजें पढ़ती हूँ और इतनी इबादत करती हूँ। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरी नसीहतों का इस पर बहुत असर हो रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं कर रहा बल्कि ये भी इबादत कर रही है। कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर शैतान ने लड़की के दिल में बरसीसा की मोहब्बत डाली और बरसीसा के दिल में लड़की की मोहब्बत डाली। चुनाचा लड़की ने कहा, आप जो खड़े खड़े बयान करते हैं, मैं आपके लिए चारपाई डाल दिया करूंगी, आप इस पर बैठकर बयान कर दिया करना और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूंगी। उसने कहा, बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब चारपाई डाल दी। बरसीसा उस पर बैठकर नसीहत करता और लड़की दूर बैठकर बातें सुनती रही। इस दौरान शैतान ने बरसीसा के दिल में लड़की के लिए शफकत और हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने आबद के दिल में यह बात डाल दी कि नसीहत सुनानी तो लड़की को होती है,
दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है। गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं, कितना अच्छा हो कि ये चारपाई जरा आगे कर लिया करो और पस्त आवाज में गुफ्तगू कर लिया करें। चुनाचा बरसीसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर होती गई और वाज़ो नसीहत का ये सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मुज़य्यन करके बरसीसा के सामने पेश करना शुरू कर दिया और वो यूं उस लड़की के हुस्न जमाल का गर्विदा होता गया। अब शैतान ने बरसीसा के दिल में जवानी के ख्यालात डालना शुरू कर दिए, हत्ता कि बरसीसा का दिल इबादत खाने से उचाट हो गया और उसका ज़्यादा वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफ़ा शहजादों ने आकर शहजादी की खबर गिरी की तो शहजादी को खुशो खुरम पाया और राहब के गुन गाते देखा। शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफ़र पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। चुनाचा उसने बरसीसा के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में बरसीसा का इश्क भर दिया, हत्ता कि दोनों तरफ बराबर की आग सुलग उठी। अब जिस वक्त वो आबद नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती और शैतान लड़की को नाजो अंदाज सिखाता और वो सरापा नाजनीन रश के कमर अपने अंदाजो अतवार से बरसीसा का दिल लुभाती, हत्ता कि आबद ने अलहदा चारपाई पर बैठने की बजाय लड़की के साथ एक ही चारपाई पर बैठना शुरू कर दिया। अब उसकी निगाहें जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो उसने सरापा हुस्न जमाल और जाज़बे नज़र पाया। चुनाचा अपनी शहवानी जज्बात पर काबू न रख सका और शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया। शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि बरसीसा जिना का मुर्तकिब हो गया। जब दोनों के दरमियान हयात की दीवार हट गई और जिना के मुर्तकिब हुए तो वो आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लग गए। इसी दौरान शहजादी हामला हो गई। अब बरसीसा को फिक्र लाहक हुई कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, मगर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि कोई फिक्र की बात नहीं, जब वज़ा हमल होगा तो मौलूद को जिंदा दरगोर कर देना और लड़की को समझा देना कि वो अपना ऐब छुपाएगी और तुम्हारा भी ऐब छुपाएगी। इस ख्याल के आते ही डर और खौफ के तमाम हिजाब दूर हो गए और बरसीसा बेखौफ व ख़तर हवस परस्ती और नफ्स परस्ती में मशगूल रहा। एक वो दिन आया जब शहजादी ने उसके बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को वो दूध पिलाने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर गए हैं और बादशाह और दीगर लोग जंग से वापस आने वाले हैं। शहजादी तो उनको सारा माजरा सुना देगी, इसलिए तुम इसका बेटा किसी बहाने कत्ल कर दो ताकि गुनाह का सबूत न रहे। चुनाचा एक दफ़ा शहजादी सोई हुई थी, उसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में दबा दिया। अब माँ तो माँ होती है। जब वो उठी उसने कहा, मेरा बेटा किधर है? उसने कहा, मुझे तो कोई खबर नहीं। माँ ने इधर उधर देखा तो बेटे का कोई सुराग न मिला। चुनाचा वो उससे खफा होने लगी। जब वो खफा होने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में ये बात डाल दी कि देखो ये माँ है, अपने बेटे को हरगिज़ नहीं भूलेगी। पहले तो नामालूम ये बताती या ना बताती, अब तो ये ज़रूर बता देगी। लिहाजा अब एक ही इलाज बाकी है, लड़की को भी कत्ल कर दो ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब बादशाह आकर पूछेगा तो बता देना कि बस वो बीमार हुई थी और मर गई। जैसे ही उसके दिल में ये बात आई तो कहने लगा, बिल्कुल ठीक है। चुनाचा उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही सहन में दफन कर दिया। इसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत वापस आ गए। उसने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। वो बरसीसा के पास आए और कहने लगे, जी हमारी बहन आपके पास थी, इसलिए हम उसे लेने आए हैं। बरसीसा उसकी बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, आपकी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी और ऐसे ऐसे इबादत किया करती थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये सहन में उसकी कब्र है। भाइयों ने जब सुना तो रो धोकर वापिस चले गए। घर जाकर जब वो रात को सोए तो शैतान ख्वाब में बड़े भाई के पास गया और उससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना? वो कहने लगे, जब हम जंग करने के लिए गए थे उसे बरसीसा के पास छोड़कर गए थे, वो फोत हो चुकी है। शैतान कहने लगा, वो फोत नहीं हुई थी। उसने पूछा, अगर फोत नहीं हुई थी तो क्या हुआ था? वो कहने लगा, बरसीसा ने खुद ये करतूत किया है और उसने खुद उसे कत्ल किया है और फलां जगह उसे दफन किया है और बच्चे को भी उसने उसी के साथ दफन किया था। उसके बाद वो ख्वाब में ही उसके दरमियानी भाई के पास गया और उसको भी यही कुछ कहा और फिर उसके छोटे भाई के पास जाकर भी यही कुछ कहा।
तीनों भाई जब सुबह उठे तो एक ने कहा मैंने ख्वाब में ये देखा है, दूसरे ने कहा मैंने भी ख्वाब देखा है, तीसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। वो आपस में कहने लगे ये अजीब इत्तफाक है कि सबको एक जैसा ख्वाब आया है। सबसे छोटे भाई ने कहा ये इत्तफाक की बात नहीं है, बल्कि मैं जाकर तहकीक करूंगा। दूसरे ने कहा छोड़ो भाई, ये कौन सी बात है, जाने दो। वो कहने लगा नहीं, मैं जरूर तफ्तीश करूंगा। चुनांचे छोटा भाई गुस्से में आकर चल पड़ा। उसे देखकर बाकी भाई भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने जाकर जब जमीन को खोदा तो बहन की हड्डियां भी मिल गईं और साथ ही छोटे से बच्चे की हड्डियों का ढांचा भी मिल गया। जब सबूत मिल गया तो उन्होंने बरसीसा को गिरफ्तार कर लिया। उसे जब काजी के पास ले जाया गया तो काजी के रूबरू अपने गिनावने और मकरू फेल का इकरार कर लिया और काजी ने बरसीसा को फांसी का हुक्म दे दिया। जब बरसीसा को फांसी के तख्त पर लाया गया और गले में फंदा डाला गया और फिर फंदा खींचने का वक्त आया तो फंदा खींचने से ऐन 2-4 लम्हे पहले शैतान उसके पास वही इबादत गुजार की शक्ल में आया और कहने लगा क्या मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? बरसीसा ने कहा हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही इबादत गुजार हो जिसने मुझे वो दम बताया था। शैतान ने कहा वो दम भी आपको मैंने बताया और लड़की को भी मैंने अपना असर डालकर बीमार किया, उसे कत्ल भी तुझसे करवाया और अब अगर तू बचना चाहे तो मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बरसीसा ने कहा अब तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? वो कहने लगा तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। उसने पूछा अच्छा बताओ कौन सी बात मानूं? शैतान ने कहा बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। बरसीसा के तो हवास बाख्ता हो चुके थे। उसने सोचा कि चलो मैं एक दफ़ा ये कहकर देखता हूँ, फिर फांसी से बचने के बाद दोबारा इकरार कर लूँगा। चुनाचा उसने कह दिया खुदा मौजूद नहीं है। ऐन उस लम्हे में खींचने वाले ने खींच दिया और यूं उस इबादत गुजार की कुफर पर मौत आ गई। नाज़रीन